Good morning to all of you. Myself Vijay. Welcome you all in the Biology at Fingertips with me, Vijay. See, my dear friends, we are discussing aerobic respiration. हम aerobic respiration डिस्कस कर रहे हैं and we have discussed the glycolysis. Step number 1 of the aerobic respiration, glycolysis. We have discussed glycolysis. We have discussed oxidative decarboxylation as the second step. And today we are going to study or discuss a very important third step, which is known as the Krebs cycle. Krebs cycle. This Krebs cycle, it is a cyclic process because this process, it starts with the combination of, I have written OAA. OAA means oxaloacetic acid. The first substrate to be used in this cycle. OAA, it will combine with the acetyl coenzyme A, which is the final product of the oxidative decarboxylation. Acetyl coenzyme A जो oxidative decarboxylation का प्रोडक्ट है, वो oxaloacetic acid के साथ मिलके citric acid बनाता है. This process, the Krebs cycle, by the name Krebs, I will tell you. This process of the Krebs cycle, it requires the generation of the oxaloacetic acid again and again in a cyclic process. So the name is cycle. Why the Krebs cycle? Because this cyclic process, it is discovered or discovered by the Krebs and Henseleit. Krebs ने दिया, इसलिए इसे Krebs cycle कहा गया. Okay. One more thing. You know, this is the process of glycolysis. In glycolysis, the glucose will be converted into pyruvate. Glucose को pyruvate में convert किया जाता है. And then, in the oxidative decarboxylation, the pyruvate is converted into acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A में convert किया जाता है. The Krebs cycle will start. That is the first step of the Krebs cycle is this one. Here, this oxaloacetic acid, it will combine with what? Acetyl coenzyme A and water to form citric acid. In the presence of the enzyme citrate synthetase, मैंने नाम यहाँ लिखा है citrate synthetase, and the process is called condensation. This is the condensation, is the step number 1. Okay. So the first reactant is oxaloacetic acid, while the first product is, or the stable product is citric acid. For that reason, it is also called citric acid cycle. The Krebs cycle is also called citric acid cycle because the first product or stable product or product is citric acid. क्लियर है? क्योंकि citric acid पहला प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट है, इसलिए इसे citric acid cycle भी कहा जाता है. And another one more name is here. It is also called as tricarboxylic acid cycle. Tricarboxylic acid cycle is the another name for Krebs cycle or the citric acid cycle. Why the name tricarboxylic acid? Tricarboxylic acid नाम क्यों आया? मैं आपको बता दूं, ये जो सिट्रिक एसिड है बेटा,
This is the acid which have 3 carboxylic acid groups in it. That means 3 COOH functional groups are there in single molecule of citric acid. Citric acid के एक मॉलिक्यूल में 3 COOH ग्रुप होते हैं, इसलिए इस साइकिल को क्या कहा जाता है? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्रेब्स साइकिल का है वो उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स COOH फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं. Is it clear now? So these are the another names for this cycle. Okay, now I will tell you the process. What is in the process? Let us see here, my dear friends. What is there? In the first step, the oxaloacetic acid will combine with the acetyl coenzyme A. That is the acetyl group of the acetyl coenzyme A. Remember it? The acetyl part of the acetyl coenzyme A, it will combine with the oxaloacetic acid and water to form citric acid in the presence of enzyme citrate synthetase, and this process is called condensation. Then, or I can say it is also called the hydration. It can be also called as hydration. Hydration means addition of water. ठीक है, और कॉम्बिनेशन हुआ, बेसिकली कंडेंसेशन हुआ, सारी चीजें मिली, पानी मिला इसमें, देखिए पानी ऐड हुआ, वाटर ऐड हुआ. ओके. इन द सेकंड स्टेप व्हाट हैपन? आई विल गिव यू द सीक्वेंस. और नेमोनिक्स जो क्रेब्स साइकिल के जो इजी ट्रिक्स है, यू विल go to the my new video at my YouTube channel Biology at Fingertips with Vijay. आप उसमें देखें. नेमोनिक्स मैंने दिया है, जैसे ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, और अब क्रेब साइकिल के लिए भी इसमें नेमोनिक्स पढ़ा हुआ है, इजी ट्रिक्स पढ़े हुए हैं. विद इन 3 minutes you will remember all the substrates and enzymes. Okay, then see. तो पहला स्टेप था ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में और वाटर से मिलता है और सिट्रिक एसिड बना देता है. किस एंजाइम की प्रेजेंस में? सिट्रिक एसिड बनाने वाला एंजाइम. एंजाइम का नेम नोमेनक्लेचर तो ऐसे ही होता है, या तो रिएक्टेंट के नेम या प्रोडक्ट के नेम या प्रोसेस के नेम के साथ एस करना होता है. एस शुड बी द सफिक्स. ये ऐड करते हैं सफिक्स. ओके, तो हमने क्या कर दिया? एंजाइम का नाम यहां पे कैसे कर दिया? सिट्रिक एसिड बना रहा है, इसलिए इसे सिट्रेट सिंथेटेस कह दिया. क्लियर? नाउ इन द सेकंड स्टेप व्हाट हैपन? नाउ द सिट्रिक एसिड it will form cis-aconitic acid with the removal of one water molecule. Okay, this process is called dehydration. देखिए पहले पानी हुआ, पानी ऐड हुआ, तो इसे हाइड्रेशन या कंडेंसेशन कहा गया. हाइड्रेशन, ये इट इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन. पर क्योंकि यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए भी मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसे कंडेंसेशन कहेंगे. याद रखें, फर्स्ट स्टेप को मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, याद रखें. फर्स्ट स्टेप में सिर्फ एसिटाइल ग्रुप के साथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मिलेगा. द कोएंजाइम ए पार्ट ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम ए, द कोएंजाइम ए विल बी रिलीज्ड and it will again go to the oxidative decarboxylation process. ये कार्बो जो कोएंजाइम ए है यहां से रिमूव हो जाता है. स्टेप नंबर 1 जब क्रेब साइकिल का होता है, और वो द्वारा जाके पाइरुवेट के साथ कंबाइन करता है और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है. क्लियर है? सेकंड स्टेप में ये हाइड्रेशन का पानी ऐड हुआ. सेकंड स्टेप क्या हुआ? पानी निकल गया, तो दिस इज डिहाइड्रेशन. द सेकंड स्टेप इज डिहाइड्रेशन and the name of the enzyme is aconitase. Aconitase, which require the iron as the cofactor. Remember? Third, now the cis-aconitic acid will be formed. In the second step, citric acid will form cis-aconitic acid with the removal of the one water molecule in the presence of the enzyme aconitase. In the third step, आप देख रहे हैं वाटर जो है वो ऐड हो रहा है. क्या हो रहा है? वाटर ऐड हो रहा है बेटा. इस स्टेप में आप देखेंगे, दिस इज कॉल्ड द, देखिए पहले पानी मिला, हाइड्रेशन, फिर पानी निकल गया, डिहाइड्रेशन. अब दोबारा से पानी ऐड किया गया, तो मैं कहूंगा रिहाइड्रेशन. है तो हाइड्रेशन ही, लेकिन स्टेप नेम इज
rehydration and the enzyme is aconitase to form isocitric acid. अब हम कैसे बोलेंगे इस टाइप को, कैसे लिखेंगे? cis aconitic acid undergo rehydration in the presence of water molecule and enzyme aconitase and iron as cofactor to form isocitric acid. क्लियर है बेटा? क्लियर? साइक्लिक प्रोसेस में है, मैं इसके नेमोनिक्स के साथ आपको क्लियर कर दूंगा. देन आप यहां पे देख रहे हैं NAD will form NADH plus H positive. NAD रिड्यूस हो गया रिड्यूस, तो आइसोसिट्रिक एसिड क्या होगा? ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडेशन होगा. इस तरफ रिडक्शन है. इफ इट इज हियर रिडक्शन इज द प्रोसेस, देन इट मस्ट बी हियर ऑक्सीडेशन. ये नहीं होना है? होगा ना, बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. क्लियर? सी now see the first step as oxidation. This is oxidation, my dear friends. So now there is oxidation. I can say isocitric acid will get oxidized to form oxalosuccinic acid, and NADH plus H positive will be formed in the presence of enzyme. What? Oxidation है. Oxidation, तो oxidation is also called dehydrogenation. किसका ऑक्सीडेशन हुआ? आइसोसिट्रिक एसिड का, आइसोसिट्रेट का. तो एंजाइम का नाम होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस. तो मैं कह दूंगा आइसोसिट्रेट और आइसोसिट्रिक एसिड will oxidize to form oxalosuccinic acid in the presence of NAD. Okay, forming NADH plus H positive. Okay, in the presence of enzyme isocitrate dehydrogenase using magnesium as cofactor. Clear? अब मैं यहां से एक बार आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में ले जाऊंगा. क्या? सी हियर, आप देखिए मॉलिक्यूल्स भी एडजस्ट करेंगे. मैं यहां तक करा देता हूं, उसके आगे फिर आपको और थ्योरी बताऊं. आप देखिए एसिटाइल कोएंजाइम इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल. when the two will combine, they will form 4 carbon and 2 carbon, 6 carbon. They will form the one molecule of the 6 carbon. Clear? Cis aconitic acid is also a 6 carbon. It will also form one molecule. Citric acid is also a 6 carbon molecule. It will also form one molecule. Oxalosuccinic acid is a 6 carbon molecule. It will also form one molecule. Okay, तो यहां तक क्लियर हो गया कार्बन और मॉलिक्यूल्स, पहले बताया मैंने ना. पांचवें स्टेप को देखिए बेटा. ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड दिख रहा है और उससे क्या बन रहा है? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन रहा है. देयर इज अ रिमूवल ऑफ CO2, रिमूव हो रहा है CO2. सो द प्रोसेस मस्ट बी डिकार्बोक्सिलेशन. किसकी डिकार्बोक्सिलेशन हुआ? ऑक्सैलोसक्सिनेट की, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड ऑक्सैलोसक्सिनेट के. तो एंजाइम मस्ट बी ऑक्सैलोसक्सिनेट डिकार्बोक्सिलेज. Fifth step is decarboxylation. I can write down oxalosuccinic acid undergo decarboxylation in the presence of enzyme oxalosuccinate decarboxylase to form 5 carbon alpha ketoglutarate. मैंने पहले कहा था कि जब कभी भी decarboxylation होता है, I have given in the particular lecture the some basic concepts of the biochemistry. उसमें मैंने बोला है कि जब भी CO2 ऐड होता है तो कार्बन नंबर बढ़ता है, और जब डिकार्बोक्सिलेशन होता है, रिमूवल ऑफ CO2 होता है, तो उसमें वो एक कार्बन घट जाता है. तो घट गया. नो. नेक्स्ट स्टेप को देखें. अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ये बना रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम में. इट इज फॉर्मिंग सक्सिनाइल कोएंजाइम में, और यहां से एक रिमूवल ऑफ CO2 हो रहा है और फॉर्मेशन ऑफ NADH plus H पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं? देखें, इसका मतलब कि यहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीडेशन होगा दूसरी साइड, और डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है. तो 6 स्टेप मस्ट बी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन.
किसके ऑक्सीडेशन हुआ? और डिकार्बोक्सिलेशन हुआ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का। और ये 5 कार्बन था, जब इसका एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो कितने कार्बन होगा सक्सिनाइल एंजाइम में? 4 कार्बन। हाउ मेनी? 4 कार्बन। तो आई कैन से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अंडरगो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, है ना? 2 स्टेप हो रहे एक जगह। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे उसका जो नेचर है वो डबल है, वो डिहाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और डिकार्बोक्सिलेशन भी कर रहा है टू फॉर्म सक्सिनाइल कोएंजाइम ए व्हिच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। क्लियर है? सी नाउ द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए अंडरगो, देखिए आप क्या हो रहा है, जीडीपी से जीटीपी बन रहा है ना? जीडीपी से जीटीपी बन रहा है, जीटीपी से फिर जीडीपी बन जाएगा और वो फॉस्फेट एडीपी को दे देगा जीटीपी और वो एटीपी बना देगा। हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, तो इट मस्ट बी कंसर्न विद द रेस्पिरेशन, इट मस्ट बी कंसर्न विद द एटीपी फॉर्मेशन। अभी तक मैंने इतनी एटीपी की बात ही नहीं की, मैं बताऊंगा बेटा आपको। जो ETS है that is totally concerned with the formation of what? It is totally concerned with the formation of yes ATPs, जो रेस्पिरेशन का मेन पर्पस है। नाउ ये क्या हो रहा है, आप यहां पे देखें, सॉरी, इट इज हियर, जो जीटीपी है वो जीडीपी बना रहा है, सॉरी जीडीपी विल फॉर्म द जीटीपी एंड जीटीपी विल फॉर्म द एटीपी फ्रॉम एडीपी। इस प्रोसेस को, क्योंकि ये प्रोसेस क्रेब्स साइकिल कहां हो रहा है, आई ना बात, कहां हो रहा है? इट इज अकरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्लियर है बेबी बात? यस, मैंने पहले बताया आपको, इट इज अकरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है, जहां पे सबस्ट्रेट्स हैं वहीं पे एटीपी बन जाएगी, इसलिए स्टेप को कहेंगे सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन। And the enzyme is succinyl coenzyme A synthetase. Succinyl coenzyme A synthetase और thiokinase. Thiokinase क्रेब्स साइकिल का वो एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है, कहीं और से वहां पे आता है। याद रखिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट। So I can say succinyl coenzyme A undergoes substrate phosphorylation in the presence of succinyl coenzyme A synthetase to form succinic acid and ATP। मैं मॉलिक्यूल की भी बात नहीं कर रहा हूं, उसका कारण है, ठीक है, एटीपी बना दिया। नाउ सी, यहां सक्सिनिक एसिड है, 8 स्टेप में लग रहा है कि वो फ्यूमेरिक एसिड बना रहा है, फ्यूमेरिक एसिड बना रहा है और साथ में FADH2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है। अगर यहां रिडक्शन होगा तो यहां पे क्या होगा? 8 स्टेप ऑक्सीडेशन। सो द 8 स्टेप इज ऑक्सीडेशन। ओके, और ऑक्सीडेशन इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन। किसकी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है? सक्सिनिक एसिड की। सो द एंजाइम मस्ट बी सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। सो आई कैन राइट डाउन सक्सिनेट और सक्सिनिक एसिड अंडरगो डिहाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस टू फॉर्म फ्यूमेरिक एसिड। क्लियर है बेटा? Which is a 4 कार्बन मॉलिक्यूल, क्योंकि ये 4 कार्बन था, इसका एक मॉलिक्यूल बना, यहाँ पे भी 4 का एक ही बनेगा। मैं इजी ट्रिक्स बताऊंगा भी आपको, इसको लर्न करने के देगा ना आपने। फ्यूमेरिक एसिड, यहाँ वाटर ऐड हो रहा है। फ्यूमेरिक एसिड अंडरगो हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमेरेस टू फॉर्म मैलिक एसिड। क्लियर है जी? क्लियर है बेटा? अब सी देन मैलिक एसिड, और यहां पे क्या रिडक्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ क्या ऑक्सीडेशन होगा। मैलिक एसिड अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 1 molecule of oxaloacetic acid with the formation of NADH plus H positive in the presence of enzyme malate dehydrogenase, क्योंकि ऑक्सीडेशन को डिहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। क्लियर है बेटा? इतना लग गया पता आपको? ये स्टेप्स थे। मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं, देखिए याद रखें आप एक बात को, एक बात याद रखें, the only 5 carbon compound in the Krebs cycle is
इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ठीक है जी, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड केवल मात्र 5 कार्बन का कंपाउंड है और पहला कंपाउंड कितने कार्बन का बना था? 6 का। इससे पीछे यहाँ सेंटर तक सिट्रिक एसिड तक जो पहला बना, पहले से लेके अल्फा कीटोग्लूटारिक तक ये तो 5 कार्बन, इससे पीछे सारे 6 कार्बन होंगे। देखिए डिकार्बोक्सिलेशन हुआ ना बेटा, उसके बाद दोबारा डिकार्बोक्सिलेशन हुआ और 4 बन के सारे। इसके बाद के जितने भी हैं ऑक्सैलोएस्टिक एसिड तक सभी 4 कार्बन कंपाउंड्स। The molecule have the 4 carbon. ओके, क्लियर है बात? ठीक है, ये हमें पता लग गया। अब देखिए बेटा, as we know, one glucose molecule is converted into 2 pyruvate, and these 2 pyruvate they will undergo oxidative decarboxylation to form 2 molecules of acetyl coenzyme में हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की। तो इससे 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने, वो एक बार में एक साइकिल रन करेगा और दूसरी बार में दूसरी साइकिल रन करेगा। करेगा नहीं करेगा? करेगा। एक बार में एक साइकिल और दूसरी बार में दूसरी साइकिल। तो यहां पे क्या होता चलेगा? प्लस होते चलेंगे। हम यहां पे एज अ होल इस प्रोसेस को पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन में, तो इट विल फॉर्म द हाउ मेनी सीयर 2 ATP। Now it is 2. Now it must be 2. Now must be 2. मैं इसको इकट्ठे बोला ना, वो दो चक्कर लगेंगे ना क्रैब साइकिल के। 2 NADH में मैंने लिखा था, देखो मैंने 2 लिखा था। एक साइकिल में, क्रैब साइकिल में एक बना और दूसरी में दूसरा बना। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 बन जाएंगे, यहाँ पे भी 2 बनेंगे। अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल्स विल बी देयर ना। ठीक है, जब 2 चलेंगे तो 2 साइकिल होंगी ना ऑपरेट, बोलने का 2 साइकिल ऑपरेट होगी, हर एक जगह अपनी लेवल पे एक करेगा। पर अगर मैं यहां देखूं तो इट मस्ट बी द 2 NADH plus H positive, must be the 2 FADH2, it must be the 2 molecules now, it must be the 2 molecule of NADH, है ना। अब देखना है जल्दी से क्रैब साइकिल को कैसे रिमेंबर करेंगे, हमें स्टेप्स रिमेंबर करने हैं। याद रखिएगा, यू मस्ट रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू रिमेंबर दिस। देखिए हाइड्रेशन कहां कहां होगा, हमें पता हो हाइड्रेशन कहां कहां होगा। हाइड्रेशन का है स्टेप नंबर 1, 3 एंड 9, 1, 3 एंड 9 ऐसे बेटा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। डीकार्बोक्सिलेशन कहां होता है बेटा? CO2 रिमूवल कहां होगा? स्टेप नंबर 5 एंड 6। स्टेप नंबर 5 एंड 6 पता हो। NADH plus H पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक हमने ज्यादा अभी ATP का नहीं किया डिस्कशन। यही वो मॉलिक्यूल है, मैंने पहले बोला था, ये ATS में जाके a single molecule of NADH plus H positive it will form 3 ATP, while a single molecule of FADH2 will form 2 ATP in ETS each। बात कर रहा हूं हर एक, ठीक है। तो NADH प्लस इसकी फॉर्मेशन कब होगी, मैं इसके लिए आपको टिप दे रहा हूं। वो क्या है? वो ये है कि आप जो इवन नंबर है उनको काउंट कर लीजिए प्रोसेसेस में। तो वो क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। देखिए मैं ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं आपसे। ऑक्सीडेशन जो है वो इवन नंबर पे होती है, FADH2 की फॉर्मेशन और NADH प्लस H पॉजिटिव की फॉर्मेशन। 2, 4, 6, 8, 10 ये इवन नंबर है ना। 2 को छोड़ दीजिए, पहले स्टेप को छोड़ दीजिए, तो कौन से रहे? स्टेप नंबर 4, 6 और खास है जो स्टेप नंबर 8 है, याद रख लें, उसमें FADH2 बनता है। 4, 6 एंड 10 इन केस ऑफ NADH, और इट इज स्टेप नंबर 8 में ये बनेगा। सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन वो तो एक ही स्टेप है बेटा, वो कहां पे है? सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन स्टेप नंबर 7 बेटा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? देख लो आप,
3 steps, 5 steps, 3, 8, 9 and 10. 10 steps are total. तो Krebs cycle is having 10 steps. क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट अब जो मैंने बात की कि रेस्पिरेशन की बात हो रही है, अभी तक एटीपी की बात नहीं हुई, और एक बड़ी खास बात क्या, जो हमने O2 लिया, रेस्पायर किया, अभी तक तो उसको कहीं भी यूज नहीं किया, ना ग्लाइकोलिसिस में, ना ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में, ना Krebs साइकिल में कहीं आपको नजर आ होगा। जो अगला जो हमारा काम रहेगा वो इसी चीज को डिस्कस करना होगा कि उनका यूज ऑक्सीजन, वेयर द ऑक्सीजन गेट यूज्ड एंड हाउ द ATPs they have been formed from NADH plus H positive and FADH2। सबस्ट्रेट लेवल की तो वहीं पे ATP बन जाती है, लेकिन ATPs कहाँ बनती है? NADH plus H पॉजिटिव से एक मॉलिक्यूल 3 ATP बनाएगा और FADH2 का एक मॉलिक्यूल 2 ATP बनाएगा। कहाँ? In the inner membrane of the mitochondria, and this process is occurring in the mitochondrial matrix। ये mitochondrial matrix में हो रहा है और वो वहां होगा। And this is the series of the various steps। तो आप इन्हें जरूर याद रखें, ये आपको बहुत याद रखना है। कैसे साइकिल को याद करते हैं? जल्दी से देखिए, मैं कैसे बोलूंगा, मुझे कैसे याद है। देखिए द Krebs cycle, I will start with the OA। OA will combine with acetyl coenzyme acid to form। आपने जो सबसे पहला काम करना है वो क्या करना है? आपने इन सबस्ट्रेट्स को याद करना है। कैसे याद करते हैं बेटा? गो टू द mnemonics easy tricks video of Krebs cycle on my YouTube channel। See, oxaloacetic acid will form citric acid। देखिए अब कैसे याद रखेंगे। citric acid, cis-saccharidic acid, isocitric acid, oxalosuccinic acid, alpha-ketoglutarate acid, succinyl coenzyme A, then succinic acid, fumaric acid, malic acid and oxaloacetic acid। आप भी मेरी तरह हैं, आपको भी याद हो जाएगा, बट जस्ट यू हैव टू बी ट्रिकी। आपको थोड़ा सा ट्रिकी तो बनना ही पड़ेगा। जरूर देखें वीडियोस को, मैं बार बार बोल रहा हूं। द ओनली 5 कार्बन कंपाउंड इन दिस Krebs cycle is अल्फा केटोग्लूटारिक एसिड। एक बार अल्फा केटोग्लूटारिक एसिड से सिट्रिक एसिड से लेकर अल्फा केटोग्लूटारिक एसिड तक सभी 6 कार्बन होंगे। अल्फा केटोग्लूटारिक से लेके लास्ट जो आपका प्रोडक्ट है ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड है, वहां तक सारे 4 कार्बन होंगे। ठीक है जी। दूसरा एक और बात याद रखिए, मैंने बोला कि जो सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन का जो एंजाइम है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेस और सक्सिनाइल थायोकाइनेस, दिस इज द एंजाइम which is not present in the mitochondrial matrix। all the other enzymes they are present in the mitochondrial matrix। all the other enzymes of the Krebs cycle they are present in the mitochondrial matrix except this enzyme। one more thing to remember, जब ATS में जाएंगे NADH plus H positive, एक मॉलिक्यूल 3 ATP बनाता है और FADH2 का एक मॉलिक्यूल 2 ATP बनाता है। क्यों बनाता है, कैसे बनाता है? you have to go to the my YouTube channel video concerned with the electron transport chain and the chemiosmotic theory of the energy formation, ATP formation। आप उसे देखें, बहुत ही easy one topic is there and you will enjoy that। और इसको याद करने के लिए कैसे सिट्रिक एसिड, cis-saccharidic acid, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा केटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमारिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, ये कैसे याद रह जाते हैं? इट इज अ मैटर ऑफ ओनली 3 मिनट्स माय डियर फ्रेंड्स। 3 मिनट्स के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। Then more Indian memory tip, the mnemonics, it is ready for you। Go to that video, you will get more and more। मैं एक और बात बता दूं जल्दी से, अगर Krebs cycle की ATPs को मैं काउंट करना शुरू करूं, यहाँ पे 2 NADH के मॉलिक्यूल थे, तो बेटा कितनी ATP बन जाएंगी? यहाँ पे देखिए 3 एक बनाता है तो कितनी बन जाएगी? 6 ATPs। अभी मैं वैसे बैलेंस शीट करना नहीं चाह रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा बता रहा हूँ। 6 ATPs यहाँ बनेगी और यहाँ पे देखिए कितनी, एक 3 बनाता है तो 2 मॉलिक्यूल है तो कितनी? 6 ATPs विल बी फाउंड। ऐसे बता रहा हूँ आपको इंटरेस्ट के लिए। 2 ATP यहाँ बन गया, एक 2 बनाता है तो यहाँ पे कितनी होगी? 4 ATP विल बी फाउंड। और यहाँ पे एक 3 बनाता है तो 2 NADH प्लस H पॉजिटिव कितनी बना देंगे बेटा? 6 ATPs। तो देखिए एक चक्कर में कितनी बनेगी, एक Krebs साइकिल में कितनी बनेगी? 6।
सॉरी हाँ फुल टू साइकिल्स में कितनी बनेगी 6 6 12 देन 2 कितनी बोलिए यस 14 4 मोर स्टेप नंबर 8 पे कितनी होगी 18 और 6 और कितनी 24 सो नेट गेन of ATP in Krebs cycle on oxidation of one glucose molecule, it is 24 ATP, my dear friends. कितनी 24 ATP. So this is all about the Krebs cycle. We will meet with you in the next video with a very important concept, electron transport chain. How the oxygen it will be used. How the ATPs they will form. 3 ATP ही NADH plus H पॉजिटिव क्यों बनाता है और क्यों बनाता है 2 ATP FADH2 का एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है ये सारी बातें करेंगे आपके साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए आप मेरे नेमोनिक्स वाला जो वीडियो उसको जरूर देखें सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एट फिंगरटिप्स विद विजय एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस टिल देन बाय टू ऑल थैंक यू